Today's lecture will discuss the planar process that is used for the manufacturing of ICs or the integrated circuits. So this process, it is called as planar process or monolithic process. Why it is called as planar process or monolithic process, that will come to know as we proceed in this lecture. So IC or integrated circuits, they are the core of electronic devices today, and there are many materials which were candidates for the production of ICs, but silicon, it is the candidate of choice because of the various properties that it shows. One of the main properties that सिलिकॉन हैज़ टू इट्स एडवांटेज इज़ द ऑक्साइड. जो ऑक्साइड होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दिस इज़ समथिंग दैट वी यूज़ फॉर isolation. This is something we use for as field oxide, okay, ICs में. So SiO2, it plays a very important role in IC fabrication, and the oxide of silicon, that is SiO2, it is more stable as compared to that of other materials, जैसे कि जर्मेनियम है हमारे पास, ठीक है. तो because of this property, this is one of the most important properties which makes silicon the candidate of choice. Why is silicon preferred in vlsi technology? Because its oxide, it is very stable and it is very easy to fabricate or produce, okay. Also, another important thing with this SiO2 is that whenever I'm trying to grow the silicon dioxide layer, जब मैं SiO2 को fabricate करना चाहती हूँ, at that time the growth of SiO2 layer, it is more controllable. इसको हम we can control it in a better way as compared to other dioxides. So these properties, they make silicon the best candidate for IC fabrication, okay. So this is the first important thing. That is why we usually use silicon. Now, okay, when we want to design an IC, okay, ठीक है, the various processes or the sequence of events जो हमें करनी पड़ती है in order to form an IC, it is called as a planar process, ठीक है. Why it is called as a planar process? Because the ICs, the different portions, the different regions of the ICs, they are produced in a plane of silicon crystal, and that is why it is called as a planar process, ठीक है. Now the various processes that are involved, they are as follows. The first one, okay, before we go into the various processes that are involved for the manufacturing of an IC, let's make ourselves familiar with some terms which we'll encounter as we move okay, as we move on in this lecture. The first one is the silicon crystal. What is exactly is a silicon crystal? Silicon crystal is a crystal of silicon. It is that is normally grown in the dimensions of 250 nanometer length and 25 nanometer diameter, as is shown here, okay. So the mass of silicon crystal is like this, as I have shown over here, okay. So this is a p-type silicon crystal, okay, and it has a proper arrangement of atoms inside it. That is why we use the term crystal, because crystal, it has proper arrangement of ions within itself. Then out of this crystal we make our wafers. What is a wafer? When I cut slices into this crystal, okay, I get thin slices which I call as a wafer, okay. So this is what a silicon wafer should look like. Then before we put it to use, before we use the silicon wafer, हम लोग इसकी polishing करते हैं, so in order to get a smooth surface, okay. A smooth surface is obtained only after we polish the wafer, okay. A rectangular wafer is also possible, and it will look something like and it will look something like this, okay. Now the various steps that are involved in IC manufacture, the first one is oxidation. Oxidation में हमें क्या करना होता है? हमारे पास सिलिकॉन का वेफर तो हमें मिल गया, okay, this is my silicon wafer. There are certain portions जहाँ पर मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर ग्रो क्या, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेनली फॉर प्रोवाइडिंग
इंसुलेशन, ठीक है, ये इंसुलेट करता है एक रीजन को दूसरी रीजन से, या इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज गेट ऑक्साइड, फील्ड ऑक्साइड, ठीक है. सो दैट इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड इन the manufacture of ICs. Okay, so oxidation is simply the process जिससे हम लोग क्या grow करते हैं, SiO2 layer on a silicon wafer, ठीक. And SiO2, it is a high quality dioxide and it has good dielectric properties. Okay, तो बिकॉज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही की क्वालिटी ही इतनी अच्छी होती है, दैट इज़ व्हाट मेक्स सिलिकॉन अ गुड कैंडिडेट. सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट विल हैव गुड क्वालिटीज़ व्हेन इट कम्स टू डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ और इंसुलेशन, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड वन इज़ वेट ऑक्सीडेशन. ड्राई ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपली हम लोग प्योर ऑक्सीजन लेते हैं और वी यूज़ इट इन ऑर्डर टू ग्रो अ डाइऑक्साइड लेयर, ठीक है. वेट ऑक्सीडेशन में हम लोग वाटर वेपर्स यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने इक्वेशन दिखाई है. अगर मेरे पास सिलिकॉन है, ठीक है, ड्राई ऑक्सीडेशन में सिर्फ प्योर ऑक्सीजन में यूज़ कर रही हूँ. सिलिकॉन इट रिएक्ट्स विद ऑक्साइड लेयर, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मी SiO2, ठीक है. वेट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मैं वाटर वेपर यूज़ करती हूँ एंड बिकॉज ऑक्सीजन इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो Si प्लस H2O इट गिव्स मी SiO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इट इज़ रिलीज्ड. तो ड्राई ऑक्सीजन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन वेट ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाटर वेपर्स यूज़ करते हैं. ड्राई ऑक्सीडेशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, दैट इज़ अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. वेट ऑक्सीडेशन इट इज़ फ्रॉम 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. ड्राई ऑक्सीडेशन जो है इसमें थिन लेयर्स ग्रो होती हैं, ठीक है. वेट ऑक्सीडेशन में इसमें थिक लेयर्स यूज़ होती है. तभी जो हमारी थिन लेयर्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर गेट ऑक्साइड लेयर, लेकिन वेट ऑक्सीडेशन की हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इंसुलेशन एंड फॉर फील्ड ऑक्साइड लेयर्स, ठीक है. ड्राई में जो ग्रोथ ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है इट इज़ स्लो, टाइम लगता है फॉर द डाइऑक्साइड लेयर टू ग्रो. वेट में द ग्रोथ इज़ फास्ट. ओके, ड्राई ऑक्सीडेशन में हमें गुड क्वालिटी ऑफ डाइऑक्साइड मिलता है एज कम्पेयर टू वेट ऑक्सीडेशन. वेट ऑक्सीडेशन में देयर आर सम इम्प्योरिटीज़ दैट रिमेन इन द डाइऑक्साइड लेयर. ओके, तो ऐसे अगर ये मेरा सिलिकॉन का वेफर है, इसके ऊपर मुझे क्या चढ़ाना है, अपना कौन सा वाला लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर. ओके, so the first process that we use when we form the ICs, it is the oxidation process. Let me repeat what oxidation process is. Oxidation process is basically the growing of silicon dioxide layer on the वेफर ऑफ सिलिकॉन. ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमें किस लिए यूज़ होता है, फॉर गिविंग अस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो फॉर एक्टिंग एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे कि हमारा गेट ऑक्साइड होता है CMOS में. ओके, नाउ ऑक्सीडेशन जो है ये दो तरह की होती है. वन इज़ ड्राई ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड वन इज़ वेट ऑक्सीडेशन. ड्राई ऑक्सीडेशन जो होती है, प्योर ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सिलिकॉन के साथ. वेट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम लोग वाटर वेपर यूज़ करते हैं एंड इट रिएक्ट्स विद सिलिकॉन अंडर प्रॉपर टेम्परेचर्स एंड प्रेशर. सो अ लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट इज़ ग्रोन ऑन द silicon wafer. Okay, but there are certain properties which are different when it comes to dry oxidation and wet oxidation. Dry oxidation में quality बहुत अच्छी होती है, wet oxidation में quality उतनी अच्छी नहीं होती है. Dry oxidation में लेकिन although quality अच्छी होती है but it is slow. Okay, इसमें thin layers of dioxide produce होते हैं, ठीक है. So this is what dry oxidation and wet oxidation is all about. Now let's move on to the second process, which is called as the photolithography. Okay, but before we go into photolithography, let's understand what lithography is. Lithography is simply when we are drawing a pattern. Okay, अगर ये मेरा IC है, मैं यहाँ पर एक रीजन डिफाइन कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ एक रीजन डिफाइन कर रही हूँ. So drawing patterns on a wafer, it is called as lithography. Okay,
लिथोग्राफी क्या हो गया, सिंपली व्हेन आई एम ड्राइंग अ पैटर्न। अब कौन सा वाला पैटर्न हम लोग इसमें आईसी में इस वक्त ड्रॉ कर रहे हैं, जो हम रीजन्स अपने डिफाइन कर रहे हैं कि ये जी यहाँ पर मेरा सोर्स रीजन है, यहाँ पर मेरा ड्रेन होगा, यहाँ पर मेरा गेट होगा। तो इस पैटर्न को जब हम लोग वंस वी रियलाइज दिस पैटर्न वी गो फॉर लिथोग्राफी। ओके, लिथोग्राफी इज सिंपली ड्राइंग द पैटर्न ऑन अ वेफर, and this lithography when done with the help of light or UV radiation, it is called as photolithography. Okay, okay. अब कैसे हम लोग फोटोलिथोग्राफी यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ पैटर्न्स। सबसे पहले वी हैव अ लेयर विच इज़ कॉल्ड एज फोटोरेसिस्ट। फोटोरेसिस्ट इज़ बेसिकली a photosensitive layer which is deposited on top of silicon dioxide. silicon dioxide मैंने ग्रो कर लिया, उसके ऊपर मैंने एक फोटोसेंसिटिव लेयर ग्रो की, एक मटेरियल की, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, फोटोरेसिस्ट। फोटोरेसिस्ट मैं इस पर कैसे चढ़ाती हूँ, वी बेसिकली वी स्पिन इट ऑन टू द वेफर विद अ हाई स्पीड स्पिनर। ठीक है, एक स्पिनर होता है जो रोटेट कर रहा होता है, जो रोटेट कर रहा होता है, एंड इन द प्रोसेस इट डिपॉजिट्स क्या, it deposits a layer of photosensitive material called as photoresist on silicon dioxide. ठीक है, तो फोटोरेसिस्ट को हमने अपने किस पे चढ़ा दिया, ऑन सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। नाउ दिस फोटोरेसिस्ट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज़ द पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द negative photoresist. Okay, so what is the difference between the positive photoresist and the negative photoresist? सबसे पहले there is a thing which is called as mask. mask क्या है, mask is simply a thin film on which we draw our pattern. ये मेरा पैटर्न इस पे ड्रॉ हुआ है कि मुझे जी ऐसे रीजन्स चाहिए। ओके, मैंने अपना पैटर्न जो है वो किस पे रखा है, मास्क पे मैंने रखा है। ठीक है, इस फोटोरेसिस्ट के ऊपर अब मैं इस मास्क को चढ़ा देती हूँ। ठीक है, इस मास्क में क्या है, देयर आर सर्टेन रीजन्स विच आर obstructed. ठीक है, लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, ये देखिए, आप यहाँ पर आप आइए, ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, इस पे ऑक्साइड लेयर भी चढ़ गया और इसके ऊपर मैंने क्या चढ़ाया है, अपना फोटोरेसिस्ट। फोटोरेसिस्ट के ऊपर मैंने मास्क रखा है। मास्क क्या है, मास्क में कुछ रीजन्स हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं आपकी लाइट को, ओके, आपकी यूवी रेडिएशन को। ओके, ये रीजन्स जो हैं दे आर ब्लैंक्ड आउट। ओके, तो अब क्या होता है, इसके बाद हम इस पे क्या इंसिडेंट करवाते हैं, अपनी जो हमारी यूवी रेडिएशन है। ठीक है, यूवी रेडिएशन आ गया इस पे। ठीक है, तो द रीजन्स विच आर ऑब्स्ट्रक्टेड इन द मास्क, कौन से वाले रीजन्स, ये वाले रीजन जो हैं, ठीक है, ये मास्क में ऐसे रखे गए हैं सच दैट दे डोंट अलाउ द यूवी रेडिएशन टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन खाली कहाँ पहुँचती है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है, दिस portion, it is exposed to, wait a minute, it is exposed to the UV radiation. ओके, इसके बाद हम लोग इसको एक डेवलपर में डालते हैं। ठीक है, तो वो वाले रीजन्स जो एक्सपोज हुए थे थ्रू द मास्क, कौन से वाले रीजन्स, ये वाले रीजन्स रिमूव हो जाते हैं। ये फोटोरेसिस्ट है, ये रीजन्स क्या हो गए, ये रिमूव हो गए। ये सारा आपका सबस्ट्रेट है, तो ये वाले रीजन्स जो हैं ये क्या हो गए, ये रिमूव हो गए, और खाली बच्चे क्या, वो वाले रीजन्स जो मास्क ने क्या किए थे, ऑब्स्ट्रक्ट किए थे। सो दिस इज़ हाउ अ पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट works like. Okay, on the contrary, we have a different type of photoresist which is called as the negative photoresist. negative photoresist में क्या होता है, इसमें वो वाले पोर्शंस जो मास्क प्रिवेंट करता है वो वॉश अवे हो जाते हैं जब हम उसको डेवलपर में डालते हैं। ठीक है, और वो वाले रीजन्स जिन पे यूवी रेडिएशन गिरती है, ये फोटोरेसिस्ट ऐसा होता है कि ये वाले रीजन जिस पे आपका यूवी रेडिएशन इंसिडेंट हो गया, ये हार्डन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं, या फिर ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। ठीक है, और when we put this thing through a developer, तो ये regions जो हैं ये wash away नहीं हो पाते हैं। Why? क्योंकि harden हो गए होते हैं using UV radiation. So this is what
द नेगेटिव फोटोरेसिस्ट इट इज़ ऑल अबाउट. पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट में क्या होता है, जिसको मास्क, जिस रीजन को मास्क बचाती है वही वाला रीजन जो है वो रह जाता है एंड पे. लेकिन नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में क्या होता है, जिस रीजन को मास्क बचाती है वो रीजन हार्डन नहीं हो पाता है और वो पॉलीमराइज नहीं हो पाता है, एंड एज सच जब हम डेवलपर के थ्रू उसको डालते हैं वो वाला रीजन क्या हो जाता है, it is washed away. Okay, so there are certain examples of positive photoresist and negative photoresist. Negative ke liye it is an epoxy resin. It is the type of negative photoresist. Or positive photoresist jo hai, it is basically one of the materials that is used is phenol formaldehyde, which is also called by the name of Novolac. Okay, so this is how we draw or define regions on a wafer. Okay,